So we're going to talk about the Cytomegalovirus, right, which belongs to the herpes virus family, and we'll be talking about it in terms of the following headings: transmission, pathogenesis, the clinical findings, as well as the lab diagnosis, right? So we'll be talking about all of this, starting with the transmission and these properties of the cytomegalovirus. ठीक है, जो cytomegalovirus है ना, it causes something known as the cytomegalic inclusion disease in the neonates. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि cytomegalovirus will be important for neonates. ठीक है, but not just for neonates, as we will see later. ठीक है, immunocompetent individuals को भी इन्फेक्ट कर सकता है, immunocompromised को भी कर सकता है, pregnant ladies को भी कर सकता है, and in all of these scenarios the sequelae will be different. ठीक है ना, पहले जब properties देख लेते हैं and then we will talk about the pathogenesis. एक तो it is one of the largest viruses जो कि इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, and the infection is quite common, right? So structurally and morphologically speaking, cytomegalovirus resembles the other members of the herpes virus family, लेकिन antigenically speaking वो different है, यानी जो body की immune response है वो specific होगी to cytomegalovirus. अच्छा, एक ही serotype है which is good, लेकिन उसके genotypes काफ़ी ज़्यादा है, मीनिंग जो जेनेटिक मेकअप है वो वेरी करता है विद इन द सेम सीरोटाइप. सीरोटाइप का क्या मतलब होता है, यानी जो तमाम मेंबर्स हैं ना साइटोमेगेलोवायरस के कहते हैं, स्पीशीज़ के कह देते हैं, दे हैव द सेम एंटीजेनिक नेचर, यानी उनकी एंटीजेनिसिटी एक जैसी है एंड देयरफॉर एक ही सीरोटाइप है, लेकिन जेनेटिक मेकअप फ़र्क करता है, वेरी करता है फ्रॉम वन वायरस टू अनदर एंड देयरफॉर जीनोटाइप्स डिफरेंट है. ठीक है, जो जीनोटिपिक चेंजेस है ना, दे डू नॉट अफेक्ट द एंटीजेनिसिटी ऑफ द सर्फेस प्रोटीन्स, क्योंकि जो सर्फेस प्रोटीन्स होती हैं ना वायरस के, वो एक्चुअली उसके एंटीजेनिसिटी को डिटरमिन करती हैं, बिकॉज दोज आर द प्रोटीन्स जो कि एक्सपोज होती हैं टू द बॉडीज इम्यून सिस्टम. राइट, सो ये वाली बातें कुछ ऑब्वियस ही हैं कि हर्पीस वायरस फैमिली को ही रिजेंबल करता है एंड देयरफॉर ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और ये भी इन्वेलप्ड है. ठीक है ना, since we've said कि structurally and morphologically resemble कर रहा है, single serotype है, यानी antigenically identical होते हैं different cytomegaloviruses, but we have multiple genotypes. ये जो genetic makeup है vary करता है from one cytomegalovirus, may vary from one cytomegalovirus to another. अब summary of the replicative cycle को हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो resemble करता है the rest of the herpes virus family को. Talking about the transmission, जो transmission है ना cytomegalovirus की वो बहुत ही यूनिक है because variety of mode से CMV transmit हो सकता है, which probably accounts for the frequency of the infection, the high frequency of the infection. कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे transmit हो सकता है? Via sexual contact, यानी via intimate contact, via the saliva, जैसे कि herpes simplex virus 1 की transmission होती है ना via saliva. And therefore young children tend to be affected. ठीक है, ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी, और ऑब्वियसली कंजेनिटल भी हो सकता है, यानी ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसमिशन भी हो सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बात आपने याद रखनी है. जब हमने HSV 1 and 2 की बात की थी तो वी डिड से कि न्यूनेट कैन गेट इन्फेक्टेड because of viral passage through the birth canal, because birth canal में भी herpes simplex virus 2 के lesions हो सकते हैं, and so the infant, the neonate, the fetus as it is being given birth to can get infected and can develop a spectrum of disease ranging from simple skin lesions to herpes encephalitis. लेकिन HSV 1 और even 2 के केस में congenital malformations नहीं होती थी, लेकिन CMV के केस में होती हैं. So that is a pertinent point. खैर अभी तो हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं ना. ठीक है, कैसे हो सकती है? एक तो ट्रांसप्लेसेंटल हो सकती है ट्रांसमिशन,
ठीक है, फ्रॉम द मदर टू द फीटस, और ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकती है, यानी बर्थ कैनाल के थ्रू जब पैसेज हो रही होती है तब भी ट्रांसमिशन हो सकती है, एंड इवन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, यानी ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर CMV वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है टू द इन्फेंट। बच्चों में कैसे ट्रांसमिशन है, खेल रहे होते हैं, दे आरंट हाइजेनिक इनफ एंड दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ वियर्ड स्टफ, तो सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकती है वाया सेक्सुअल इंटीमेट कॉन्टैक्ट, बिकॉज सेमिनल और सर्वाइकल सिक्रीशंस दोनों में CMV सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है। और इवन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है ना, जब आप ब्लड अपना देते हैं किसी और को, इसलिए स्क्रीन किया जाता है ना फॉर स्टफ लाइक HIV एंड CMV, एंड इवन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उनमें भी हो सकती है। बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट विद रिगार्ड्स टू पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी। ठीक है, कैसे इन्फेक्शन होता है, और एज वी सेड कि देयर आर वैरायटी ऑफ मोड्स। सबसे पहले द म्यूकोजा गेट्स इन्फेक्टेड, और म्यूकोजा में रेप्लिकेशन होती है, और जो इन्फेक्टेड सेल्स नहीं होते हैं दे हैव दिस पर्टिकुलर इंक्लूजन बॉडी, इसको हम आउल्स आई इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। आई विल शो एन इमेज ऑफ दैट लेटर। दैट्स इंपॉर्टेंट एज फार एज द पैथोजेनेसिस इज कंसर्न्ड। ठीक है ना, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अगर फीटस इन्फेक्ट हो तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फाइंडिंग? इन्फेक्शन ऑफ द फीटस कैन कॉज something known as cytomegalic inclusion disease, जिसमें आपको multinucleated giant cells नज़र आते हैं which will have prominent intranuclear inclusion, जैसे कि मैंने अभी बताया, उनको हम owl's eye inclusions कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे organs affect होते हैं fetus के because of the transplacental transmission, and बहुत सारी congenital malformations develop होती हैं, and I'll tell you what those are later। और ये कैसे होता है? अगर प्रेगनेंसी के दौरान, इफ़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a woman gets a primary infection of CMV, यानी वो पहली बार इन्फेक्ट होती है by the Cytomegalovirus, and obviously since this is her first exposure to the virus, she has no antibodies which can neutralize the virus, and therefore there's nothing to stop the CMV which is inside the body of the female, the pregnant female, to cross the placenta and into the fetus। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन में ज़्यादा रिस्क होता है कंजेनिटल इन्फेक्शन का। अगर मदर को पहले भी हुआ ना साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन, तो फिर कम रिस्क होता है कि वो पास करेगी वायरस को टू द फीटस। अगर फीमेल इन्फेक्ट हो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, then it is more likely that she will transmit to the fetus, and it is more likely कि congenital abnormalities develop होंगी। ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती जितना कि एबनॉर्मेलिटी की फ्रीक्वेंसी। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, when the organs are getting formed। तो जब उस पीरियड में इन्फेक्शन हो ना फीटस इन्फेक्ट हो जाए ना, तो ज़्यादा रिस्क होता है कि congenital malformations डेवलप हो। ठीक है, so this is the great or the grave importance of the CMV infection। जब we're talking about, we said कि children भी इफेक्ट हो जाते हैं saliva, adults भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, but उस केस में it's not that much of a problem। most of them एक तो asymptomatic होंगे, ठीक है, and they can develop something known as, and if they do develop symptoms, they develop something known as mononucleosis। ठीक है, उसमें वही वाले सिम्टम्स होते हैं जो कि एक और वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं, known as the EBV वायरस। ठीक है, नहीं जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। अगर एक इम्यूनोकॉम्पिटेंट एडल्ट या इम्यूनोकॉम्पिटेंट चाइल्ड इन्फेक्ट हो तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है ना, लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल इफेक्ट हो and this happens to be her first exposure, and if she is infected during her first trimester, तो बहुत likely है कि जो fetus है ना will develop congenital malformations, यानी इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोई थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। So what if an immunocompromised individual gets infected?
इसको भी कंसिडर करना चाहिए ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार पैथोजेनेसिस रिव्यू करते हैं, ठीक है। जब एक्सपोजर होता है ना, वेदर सेक्सुअल, सलाइवा के ज़रिए या अदरवाइज, तो जो सेल्स होते हैं ना वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, और जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो डेवलप करते हैं, एज आई प्रीवियसली स्टेटेड, इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो वायरस है ना वो लेटेंट हो जाता है। लेटेंट हो जाता है किधर लेटेंट हो जाता है, किन सेल्स के अंदर लेटेंट हो जाता है, मोनोसाइट्स के अंदर, विच बिलोंग टू द मोनोन्यूक्लियर फैमिली। वो मोनोसाइट्स के अंदर लेटेंट हो जाते हैं, और अगर एट एनी पॉइंट इन दैट पर्सनस लाइफ इफ देयर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फॉल्स, पर्सन के वो पर्टिकुलर पेशेंट है, दे डेवलप कैंसर एंड देयरफॉर दे हैव टू टेक कीमोथेरेपी, कि अगर उनकी बोन मैरो सप्रेशन हो जाए, कोई भी वजह हो जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी गिरे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करता है, टी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। किसी भी वजह से अगर टी सेल का फंक्शन इम्पेयर हो तो दे कैन डेवलप समथिंग विच इज हैज द पोटेंशियल टू बी क्वाइट फेटल। हम उसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो और बातें भी हैं। अच्छा, सेम वी कैसे लेटेंट रह जाता है मोनोसाइट्स के अंदर, वाया ए स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ इम्यून इवेशन दैट अलाउज इट टू मेंटेन द लेटेंट स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाए ना बाई CMV, तो जो वो पर्टिकुलर सेल है ना उसकी जो असेंबली होती है ना MHC कॉम्प्लेक्स की, वो अनस्टेबल हो जाती है। सो इवन दो दैट पर्टिकुलर cell is infected, the virus antigens are not being presented on its surface, and therefore जो cytotoxic T cells हैं बॉडी के वो recognize ही नहीं कर सकते कि ये particular cell infected है, ठीक है। तो ये कुछ immune evasion वाला पॉइंट याद रहना चाहिए। CMV जो वायरस itself है वो एक वायरल प्रोटीन बनाता है known as a which is basically a chemokine receptor, और जब ये प्रोटीन रिलीज होती है ना उस पर्टिकुलर सेल से तो आसपास कीमोकाइन के साथ बाइंड कर जाते हैं, एंड नॉर्मली वो जो कीमोकाइंस होते हैं वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, एंड देयरफॉर दोस कीमोकाइंस दे फेल टू सर्व एज अ सिग्नल फॉर द होस्ट इम्यून सेल्स टू माइग्रेट टू द साइट ऑफ द CMV इन्फेक्शन। इसके अलावा जो CMV इन्फेक्शन है वो बाय इटसेल्फ टी सेल फंक्शन को भी सप्रेस कर सकता है। अच्छा, CMV इन्फेक्शन के अगेंस्ट बी सेल्स भी काम करते हैं और टी सेल्स भी काम करते हैं, लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसी बंदे में इम्पेयर हो जाए तो वो क्या डेवलप करता है, वो सिस्टेमिक डिजीज डेवलप करता है बिकॉज ऑफ अ CMV इन्फेक्शन। वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि ससेप्टेबल होते हैं टू CMV इन्फेक्शन? कोई एड्स का पेशेंट है, उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से काम नहीं करती, वो ससेप्टेबल है। या कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट है, वो भी ससेप्टेबल है बिकॉज ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं जो कि उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इम्पेयर करते हैं। वजह ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, एंड सो व्हेन अ पर्सन हैज अ ट्रांसप्लांट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिजेक्शन उससे ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनहिबिट करती हैं। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, दे आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू एन इन्फेक्शन बाय CMV एंड ससेप्टेबल टू डेवलपिंग सिक्वेलिया। जो सबसे अहम consequence हो सकता है ना of a CMV infection in an immunocompromised individual is chorioretinitis, ठीक है, which can be very bad, can lead to blindness even, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है? एक तो रेटिनाइटिस कर रहा है एड्स पेशेंट्स में, एंड ये कोरियोरेटिनाइटिस बिकॉज ऑफ CMV इन्फेक्शन इन एन एड्स पेशेंट। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? इसकी इंपॉर्टेंस की बेसिकली यही वजह है कि अगर ये इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से इतनी स्कारिंग हो जाती है कि रेटिना की, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। दूसरी बात यह कि एक एड्स का पेशेंट है ना, ही इज ससेप्टेबल टू डेवलपिंग इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ CMV, जिसकी वजह से इंट्रैक्टेबल कोलाइटिस होता है विद डायरिया। कोलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। इंट्रैक्टेबल का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू एनी मेडिकेशन, टू एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। अगर एक पेशेंट है हु जस्ट हैड अ ट्रांसप्लांट, स्पेशली अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो जिसमें बिल्कुल ही स्टेम सेल काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल न्यूट्रोपिनिक स्टेट होती है, या अगर रीनल ट्रांसप्लांट हो ना, उन्हें अगर CMV इन्फेक्शन हो जाए तो वो किस तरह के सिस्टमिक इन्फेक्शन डेवलप कर सकते हैं?
pneumonitis, which is inflammation of the lungs, esophagitis, inflammation of the esophagus, hepatitis, inflammation of the liver. हेपेटाइटिस की बहुत सारी वायरल कॉजेज होती है, नॉर्मली वही होते हैं हेपेटाइटिस ए बी एंड सी वायरस, लेकिन अनकॉमन कॉजेज में वी हैव CMV एंड एप्स्टीन बार वायरस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर एक इम्यूनोकॉम्पिटेंट एडल्ट है ना या चाइल्ड है ना एंड दैट पर्सन बेसिकली एक्वायर्स अ CMV इन्फेक्शन, उससे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, आई जस्ट राइट दिस डाउन बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. So if you're dealing with an immunocompetent individual, does it matter कि वो बच्चा है या वो adult है, he will develop something called mononucleosis, जिसमें mild symptoms होंगे जैसे किसी भी viral infection के होते हैं. And someone might think कि this is because of EBV, because जो symptoms होते हैं ना वो resemble करते हैं. और जब किसी डॉक्टर को खदशा होता है कि मे बी ये EBV इन्फेक्शन है एंड वो कहते हैं कि अच्छा आई वांट टू कंफर्म कि ये है या नहीं, तो वो एक हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट करता है जिसको हम मोनोस्पॉट टेस्ट कहते हैं, विच इज़ पॉजिटिव इन EBV, बट दिस विल बी नेगेटिव इफ़ दिस इज़ अ CMV इन्फेक्शन. ठीक है, तो उससे उसको अंदाजा होगा अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि ये CMV इन्फेक्शन है बिकॉज द मोनोस्पॉट टेस्ट इज़ नेगेटिव. ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है विदाउट एनी इंपॉर्टेंट सिक्वेल, यानी कोई मसला नहीं होता. इम्यूनोकॉम्पिटेंट में सिर्फ ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है विद माइल्ड सिम्टम्स. मोनोस्पॉट टेस्ट करें तो नेगेटिव आता है. ठीक है, वट इफ दिस इज एन इंडिविजुअल हु इज़ प्रेग्नेंट एंड जिससे पहली बार CMV इन्फेक्शन हुआ है एंड देयरफॉर डजंट हैव एनी एंटीबॉडीज. ठीक है, और उसे हुआ भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, तो फिर क्या होता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़. कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस में. अगर वो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड का क्या मतलब, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें T सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दूसरा होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसमें B सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सेल मीडिएटेड में T सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल एड्स जिसमें T सेल्स अफेक्ट होते हैं, एंड ट्रांसप्लांट जिसमें आप ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि T सेल्स को सप्रेस करती हैं. अगर वो एड्स का पेशेंट है ना, एड्स के पेशेंट की जब T सेल लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम होते हैं ना, आप उनको प्रोफाइलेक्टिकली कुछ ड्रग्स देने लगते हैं टू प्रिवेंट ऑप्टिमिस्टिक इन्फेक्शन बाय वेरियस वायरसेस एंड बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्टफ लाइक CMV. क्योंकि अगर एड्स का पेशेंट है, उसने अगर फॉर एग्जांपल CMV इन्फेक्शन डेवलप कर लिया ना, he can go on to develop chorioretinitis, which is bad because it can lead to enough damage that would lead to blindness. इसके अलावा intractable colitis with diarrhea भी करवा सकता है. ठीक है ना. What about transplant patient, especially अगर stem cell और renal transplant का patient हो, तो फिर क्या होगा, सिस्टेमिक डिजीज़ होगी ना ऑब्वियसली, इसमें भी T सेल इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है. व्हाट प्रॉब्लम डू दे हैव विद दिस. अच्छा ठीक, तो क्या होगा, सिस्टेमिक डिजीज़ डेवलप करेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रीटी मच एवरीथिंग. हेपेटाइटिस भी हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है. मैंने पहले कहा था ना कि बहुत सारे वायरसेस हेपेटाइटिस करवा सकते हैं, नॉट जस्ट द हेपेटाइटिस A, B and C's. ठीक है, वन ऑफ देम इज़ दिस वन. न्यूमोनाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया. तो ये हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की हैं. फिर अगर इम्यूनोकॉम्पिटेंट को हुआ तो फिर क्या होता है. जाहिर सी बात है ना, मैंने इनिशियली बताया था ना कि इंतहाई कॉमन इन्फेक्शन है, तो अगर वो लेकिन इतना डेडली क्यों नहीं होता, बिकॉज मोस्टली जो पीपल इन्फेक्ट होते हैं वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट होते हैं. अभी हम बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस. इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज़ की बेसिकली हमने दो कैटेगरीज कंसिडर की है ना. इसलिए लेट्स डू दिस. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी इन्फेक्ट हुई है, तो किस किस तरह की कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस उसकी बेबी में डेवलप कर सकती हैं, वो भी हमें डिस्कस करनी चाहिए ना. ठीक है, एक तो कंजेनिटल CMV इज समथिंग जो कि ऑफन टाइम्स वो सवाल पूछ लेते हैं.
20% इन्फेंट्स जो कि इन्फेक्ट होते हैं ना ड्यूरिंग गेस्टेशन यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्लिनिकली अपेरेंट मैनिफेस्टेशन शो करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है? माइक्रोसेफली, जिसका मतलब है कि हेड छोटा है एंड देयरफॉर ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं हुई, इंडिकेटिव कि ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं हुई। साथ में सीरियस है फॉर द सेम रीज़न। डेफनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन्डिस एंड पर्परा। जो पर्परिक लीजन्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि दोज रिजेंबल ब्लूबेरी मफिन। ये जो ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस है ना, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट इन्फेक्शन बाय साइटोमेगेलोवायरस, और बहुत सारे केसेस में भी होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हिपैटोस्पिनोमेगेली इज़ वेरी कॉमन एंड एज एफ प्रीवियसली स्टेटेड कि माइक्रोसेफेली होती है, इसकी वजह से सीरियस होते हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए, मेंटल रिटार्डेशन की अहम कॉजेज में CMV की इन्फेक्शन है शामिल है। ठीक है, इसको जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर प्रेग्नेंट विमेन है, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, दिस इज, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, तो वेरियस कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस होंगी। ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस। अच्छा, जो डेफनेस वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि व्हाट कि नेम द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ कंजेनिटल, नेम ए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंजेनिटल डेफनेस। तो दिस इज इट, डेफनेस वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोसेफेली, इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन लिखते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन की भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है ना CMV इन्फेक्शन। सीरियस जॉन्डिस, इसका मतलब है कि लिवर पे इफेक्ट हो रहा है। एंड ब्लूबेरी मफिन, लेकिन आई विल वार्न यू, ब्लूबेरी मफिन सिर्फ इस केस में नहीं होता। देयर आर अदर कंजेनिटल इन्फेक्शन जिसमें जो बेबी बॉर्न होता है, ही और शी हैज दैट ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक, कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें की। ठीक है, अब एक बार फिर देख लें किन किन हो सकते हैं। इम्यूनोकॉम्पिटेंट, प्रेग्नेंट वेमेन, ये देख लेंगे कंजेनिटल CMV में क्या क्या होता है। ठीक है, डेफनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, as is something like microcephaly which can lead to mental retardation. Blueberry muffin syndrome not that important, बहुत सारे congenital में होता है। ठीक है, immunocompromised में क्या होगा? एड्स के पेशेंट्स और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में डिफरेंट चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं। ये कोरियोरेटिनाइटिस वाला पॉइंट अहम है, ट्रांसप्लांट वाला भी अहम है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की इम्पेयरमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी हमने उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कंसिडर की। ये ट्रांसमिशन वाला पॉइंट है। ये पता भी, ये बात मैं ज़रा रिपीट करना चाहती हूँ कि ये लेटेंट की ज़रूरत है, बिकॉज ये MCQ आ सकता है, यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज EBV की भी लेटेंसी ना एक्चुअली इम्यून सेल्स के अंदर होती है, बट डिफरेंट वंस। लेटेंट होता है मोनोसाइट्स के अंदर। हाउ डज इट इवेड द इम्यून सिस्टम? बिकॉज ये बहुत अरसे तक लेटेंट रह सकता है, और अगर किसी भी वक्त इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज डेवलप हो तो इट कैन गेट रीएक्टिवेटेड। इसको हम बल्कि ऐसा लिखते हैं छोटा करके, इम्यून इवेजन। बेसिकली एक तो ये MHC1 के साथ मैस करता है, MHC1 की एक्सप्रेशन के साथ मैस करता है, और एक्सपोर्ट करता है कीमोकाइन रिसेप्टर्स को, ताकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को ये मोनोपोलाइज कर ले बेसिकली। तो ये कुछ बातें होंगी, और इसके अलावा पैथोजेनेसिस में वही बातें हैं। पैथोजेनेसिस में लेटेंसी वाला पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ कि ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसप्लेसेंटल, बर्थ कैनाल से, सलाइवा से, सेक्सुअल, इनिशियल इन्फेक्शन वाली एरिया में आउला इंक्लूजन्स बनती हैं, और लेटेंसी हो जाती है मोनोसाइट्स में। इनका भी अगर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्पेयर हो, तो रीएक्टिवेशन हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट लैब डायग्नोसिस। एक तो PCR बेस्ड एसेज होते हैं ना साइटोमेगेलोवायरस के DNA के लिए या उसके mRNA के लिए। टिश्यूज़ पर भी कर सकते हैं, फ्लूइड पर भी कर सकते हैं, मसलन कि स्पाइनल फ्लूइड या इवन एमनियोटिक फ्लूइड पर भी आप कर सकते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड, बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो वायरस में आप PCR ऐसे तो आँख बंद करके हर किसी में लिख सकते हैं ना बेसिकली। आप वायरस को कल्चर भी कर सकते हैं इन स्पेशल ट्यूब्स। कल्चर भी एक अहम डायग्नोस्टिक मेथड होता है। ये बात फ़र्क है कि एक स्पेशल कंटेनर में करते हैं, स्पेशल ट्यूब्स में करते हैं, शेल वायल्स बेसिकली। अच्छा, और इसके साथ जब कल्चर कर लेते हैं ना, तो फिर आपने डिटेक्ट भी तो करना होता है। तो फिर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द इमीडिएट अर्ली एंटीजन। ठीक है,
डिटेक्शन ऑफ immediate early antigen via immunofluorescent antibody. इम्यूनोफ्लोरेसेंट ये होता है ना कि अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ मिलकर फ्लोरेस करती है और उस फ्लोरेसेंस को आप वेरियस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं. ज़रा अपने कल्चर में तो आप बेसिकली ग्रो करें ना वायरस को, आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छा ग्रो करके क्या बनाया. यू कैंट सी दैट विद योर नेकेड आइज ऑब्वियसली. ठीक है. अच्छा, कल्चर करने के क्या फ़ायदा होता है? वही फ़ायदे हैं जो कि बैक्टीरियल कल्चर के होते हैं कि आप सेंसिटिविटी भी चेक कर सकते हैं टू वेरियस एंटीवायरल ड्रग्स लाइक गैंसिक्लोवर. गैंसिक्लोवर इज समथिंग यू यूज़ फॉर CMV. सेंसिटिविटी टू गैंसिक्लोवर कैन बी असेस्ड बिकॉज कुछ होती हैं ऐसे वायरसेस जो कि गैंसिक्लोवर के रेजिस्टेंट होते हैं, फिर हमें ऑल्टरनेटिव ड्रग्स लाइक फॉस्किनेट एक्सेट्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है ना. तो ये हो गया. अदर डायग्नोस्टिक मेथड्स इंक्लूड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी. इसके अलावा ना आप इंक्लूजन जो बॉडीज़ होती हैं ना उनको स्टेन कर सकते हैं टिश्यूज़ में भी और यूरिन में भी, बिकॉज यूरिन के ज़रिए भी CMV कैन बी स्प्रेड. जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, उनकी ओवल शेप होती है. इसकी भी बेसिकली इसे भी शो करना चाहिए. सो दिस ओवर हियर साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्टेड सेल है. आपको आउल्स आई इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आ रही हैं. And this arrow over here is basically pointing to the nucleus of an infected cell. The intranuclear एक ऐसा point है which you must remember at all cost. ठीक है ना. तो ये outside inclusions भी कर सकते हैं. अच्छा, और आप CMV एंटीजेनीमिया यानी कितना एंटीजन लोड है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं. डिटेक्टिंग PP65 within blood leukocytes by the use of an immunofluorescence assay. PP65 एक ऐसी प्रोटीन है जो कि CMV के न्यूक्लियोकैस्पिड पर लोकेटेड होती है. ठीक है. तो आप PP65 को डिटेक्ट कर सकते हैं ना विद इन ब्लड ल्यूकोसाइट्स यूजिंग फ्लोरेसीन लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना एंटीजन लोड है. बेसिकली क्या करते हैं आप CMV एंटीजेनीमिया के कितना एंटीजन लोड है. कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय डिटेक्टिंग PP65 इन ल्यूकोसाइट्स. और ये करने के लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्लोरेसेंट, ताकि आप डिटेक्ट भी तो करना चाहते हैं ना. फ्लोरेसेंट लेबल्ड मोनोक्लोनल जो कि एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक फॉर PP65. आई विल रिपीट. PP65 is a protein on the nucleocapsid of CMV. न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? सबसे पहले इन्वेलप होता है, उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, अंदर वायरस का DNA होता है. न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जो पड़ा DNA होता है ना वो एंटर करता है सेल में. बाद में न्यूक्लियोकैप्सिड खत्म हो जाता है और DNA एंड द जेनेटिक मटेरियल इज एबल टू एंटर एंड डू इट्स जॉब. तो ये हो गया. एंड आई गेस वी आर प्रीटी मच डन. बस ट्रीटमेंट रहता है. गैंसिक्लोवर मॉडरेटली इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग CMV रेटिनाइटिस एंड निमोनिया. अगर पेशेंट आए ना एड्स का, उसने CMV रेटिनाइटिस डेवलप किया है, आप गैंसिक्लोवर दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए. अच्छा, एक और भी है वेल गैंसिक्लोवर जो कि गैंसिक्लोवर जैसे ही, लेकिन एक तो ये प्रोड्रग है, दूसरा आप इसको ओरली ले सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव है. अगर कोई CMV रेजिस्टेंट स्ट्रेन है ना जो कि रेजिस्टेंट है टू गैंसिक्लोवर, तो वेल गैंसिक्लोवर के अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट होगी. ठीक है. तो इसलिए ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करना एक अहम बात है. अगर रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो तो फिर फॉस्किनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. नॉर्मली जो सेकंड लाइन ड्रग्स हैं होती भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं. प्रिवेंशन क्या है? कोई भी वैक्सीन नहीं है, ये बात याद रखने वाली है. देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट CMV. सो अगर वो कहें कि इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट CMV कंजेनिटल CMV, सो व्हाट विल यू डू? डोंट राइट कि आप वैक्सीनेट करेंगे मदर को, बिकॉज कोई वैक्सीन ही नहीं है. ठीक है. अगर एक एड्स पेशेंट है, उसने CMV एक्टिवेट हो गया, वो रेटिनाइटिस डेवलप कर रहा है, यू कैन गिव देम गैंसिक्लोवर, ताकि रेटिनाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ना विच कैन कल्मिनेट इन ब्लाइंडनेस. सब उसको कंट्रोल करने के लिए गैंसिक्लोवर देते हैं. गैंसिक्लोवर फॉर प्रोग्रेसिव रेटिनाइटिस. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एड्स में पेशेंट्स में होता है, बिकॉज वी नो उन्हीं में प्रोग्रेसिव रेटिनाइटिस डेवलप करता है.
ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है तो आप उससे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है उसने हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया, उसको बार बार अब CMV इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप लेटरमोवियर दे सकते हैं, तो क्योंकि वो रिकरेंसेस को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक इन्फेंट है हुआ साइटोमेगैलिक इंक्लूजन डिजीज, अब ज़ाहिर अपने यूरिन में वायरस को शेड कर रहा होता है। यू नीड टू कीप दैट इन्फेंट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पेशेंट्स। ठीक है, तो ये बात लिख लेते हैं। ये बात इन्फेंट शेडिंग वायरस, अगर उस इफ ही इज बॉर्न विद CMV इंक्लूजन डिजीज, तो आइसोलेशन करनी पड़ती है। ठीक है। अगर ब्लड देना ना ट्रांसफ्यूजन को टू न्यूबॉर्न शुड बी CMV एंटीबॉडी नेगेटिव, और अगर आपने ट्रांसप्लांट करना है तो जो ऑर्गन्स है ना फ्रॉम शुड बी फ्रॉम अ पर्सन हु इज एंटीबॉडी नेगेटिव। ठीक है। दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स द रिक्वायरमेंट फॉर इट। अच्छा, अगर एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है एंड यू वांट टू प्रिवेंट डिसेमिनेटेड CMV, तो आप एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन दे सकते हैं नोन एज साइटोगैम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वी डोंट हैव अ वैक्सीन, we do have an immunoglobulin preparation known as cytogam to prevent disseminated disease in organ transplant patients। आप नहीं चाहते ना कि उन्हें disseminated disease हो जाए, ज़ाहिर है उनकी mediated immunity काम तो कर नहीं रही। cytogam, so that is basically what is given to prevent disseminated infection। Yancey-Clover progressive retinitis के लिए to prevent recurrences। ये कुछ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं, एंड अब हम नेक्स्ट टाइम EBV इन्फेक्शन की बात करेंगे। आई एम होपिंग दिस इज समथिंग विच मेक सेंस टू यू।